Welcome to Ref Sports. I am Gargi Raut, and joining me today are two incredible human beings. You must have all heard the name Avinash Sabre in the news recently. Avinash has become the first Indian to win a gold in 3000 meter steeplechase. He also bagged the silver in men's 5000 meter. We also have Vijay Raghavan Venugopal, founder and CEO of nutrition and hydration brand Fast and Up. Not only that, he is also a passionate runner. He has run sub 3-hour marathons 8 times in major cities throughout the world. Welcome, Avinash and Vijay. I hope you are enjoying Ref Sports. We are a bunch of mad, passionate people who always strive for excellence, and in doing so, we want to create a legacy. Avinash, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. आपके एशियन गेम्स में ऐतिहासिक जीतों के लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब जो आप पहले इंडियन बन गए हो जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीता है, क्या आपके अंदर कुछ बदलाव आया है तब से? थैंक यू. मतलब एशियन गेम्स में मेडल जीत के मतलब कॉन्फिडेंस तो आया है कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद जैसे हमारे स्टीपल चेस में पहले सिल्वर मेडल वगैरह रहा, ब्राउन्स भी रहे हैं, लेकिन पहली बार गोल्ड जीता है तो कॉन्फिडेंस आया है. और ये है कि अभी आने वाले जो कॉम्पिटिशन है नेक्स्ट ईयर में, जैसे ओलंपिक्स या इसमें, तो उसमें भी अच्छा करना है और मतलब मेडल जीतने के लिए होप लेके जाना है और उसके लिए प्रिपेयर होना है. जी बिल्कुल. और हम सब ने आपका रीसेंट इंस्टाग्राम रील भी देखा है जिसमें आप एक लग्जरियस गाड़ी में बैठे हैं और आपका बहुत जोरों शोरों से आपके होम टाउन में वेलकम हो रहा है. क्या ये नई स्टारडम ने आपको किसी तरीके से बदला है? हाँ, नहीं मतलब अच्छा लगा कि जैसे कि मैं जब घर जा रहा था तो जो मेरे गांव की तरफ से सभी ने मतलब जो मेरा स्वागत किया, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा वो देख के. और वो देख के मतलब ये लगा कि नहीं, अभी एशियन गेम्स में मेडल जीता है, मतलब इतना अच्छे से मेरा स्वागत किया, तो जो आने वाली कॉम्पिटिशन है उसमें मुझे और अच्छा करना है, जिससे मतलब सभी जिस तरह से मेरा स्वागत किया उससे भी अच्छा करेंगे और भी. लेकिन ये बहुत अच्छा किया था, वो देख के तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा मतलब खुश हुआ था मैं. Vijay, coming over to you, talk about how important sport is to this brand. You being an avid athlete yourself, with the new future of Olympic sport in India and the new awakening, how do you want to add to the story? I think one of the key ingredients that I have seen which has been missed every time is nutrition. We talk about a lot of other things, but I think if a person like Avinash Sable has to perform at the top level continuously, not just at the Asian Games but at the Olympics, nutrition has to play a key role. And there are very few Indian homegrown brands which provide quality nutrition to the Indian athletes. So I think it's very important that we have more brands coming out of India who are also focused on sports a bit, because sports in terms of business itself is going to be very small, but unless the companies and the brands put their might into it, it's not going to make a difference, right? And I think nutrition at some level will be the cutting edge between, say, a medal and a not a medal. So I think nutrition will have to play a role, and I think athletes are also trying to understand that, and I'm happy that it's going to be a very synergistic process, because we need more people to talk about it and take the game on. Yes, Avinash, आपने अपनी एथलेटिक जर्नी आर्मी से शुरू की थी. जो एथलीट्स आपके साथ compete करते हैं उनमें से मेजॉरिटी अपने बचपन से compete करते आ रहे हैं. कभी ये बात ने आपको प्रेशर में डाला है? मतलब मुझे देखा जाए तो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में लेट आया, क्योंकि 2017 में मैं स्टीपल चेस में आया था. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जल्दी आने से और अच्छा हो सकता था, लेकिन मुझे लेट मौका मिला क्योंकि मैं आर्मी में जाने के बाद स्पोर्ट्स करने का मौका मिला. क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी सीख रहा हूँ, अगर शायद मैं ये चीज़ें पहले ही सीखता 2-3 साल पहले, तो डेफिनेटली जो मेरा परफॉर्मेंस है, अगर मैं जो जैसे आप परफॉर्म कर रहा हूँ इससे भी बेटर परफॉर्म करता. लेकिन जो भी मुझे लगता है कि अगर मैं लेट भी आया हूँ तो मैं उतना जल्दी उसमें अडेप्ट हुआ और वो चीज़ें मतलब बहुत जल्दी से मतलब सीखने की कोशिश क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे जो भी करना है बहुत जल्दी करना है. तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी मतलब
वैसे अच्छा आते गया जल्दी से, जैसे 2017 में आया और 18 में ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो लेट आया लेकिन जो रिजल्ट है वो अच्छा रहा। जी बिल्कुल। Vijay, tell us about your journey as an amateur marathoner and what inspired you to pursue this passion alongside your career in business. I think if you look at last 10 years, a lot of people are taking up sports in a very active way. So I was one of them, always interested in sports right from childhood. But what running and marathon running has given me is an opportunity to run on the same course that an Avinash Sable runs, right? Yesterday I was at the Delhi Half Marathon, which was where Avinash had broken his the national half marathon record. So to run on the same course with such elite people, no other sport gives that opportunity. And I think a lot of people are taking up to running because it's a very simple sport. You can actually run anywhere in the country, get onto the roads, put on your shoes, and get inspired by somebody like him. So that's the beauty of pursuing sport. And sport, I think at some level builds character, really gels well with the business that you pursue, because even business needs a sustainable kind of approach where you have to show the patience, have the perseverance to achieve your goals, very similar to achieving success in sport. So I think both are very synergistic in terms of learning. I think good sports people end up becoming good at being a professional or at business as well. Absolutely. अविनाश, आपने अपना सफ़र आर्मी से शुरू किया था। अपने सफ़र के बारे में बताइए। आर्मी ट्रेनिंग ने आपके लाइफ में किस तरीके का इफेक्ट रखा है? वैसे मतलब जो मेरी ट्रेनिंग थी वो 2012-13 में हुई। तो ट्रेनिंग में तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है जो आर्मी की। तो मेरा फिजिकल तो मतलब अच्छा ही था वैसे, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग है वो जैसे फिजिकली फिट करती है, लेकिन एक मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें करनी पड़ती है, जिससे कि कभी कभी ऐसे लगता है कि इतना सारा मतलब ये क्या है। मतलब ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाते हैं जिससे कि मेंटल हेल्थ कैसे मतलब स्ट्रांग हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स में मुझे अगर जो ये मिला है, मतलब एक अच्छा कर रहा हूँ, तो वो ट्रेनिंग की वजह से ही कर रहा हूँ। जैसे मैं 12-13 में ट्रेनिंग की, उसके बाद यूनिट में जब रहा मैं 3-4 साल, क्योंकि मैं 2016 में स्पोर्ट्स में आया। तो वो जो 3-4 साल थे वो मेरे लिए मतलब ये था कि वो 3-4 सालों में मेरा वेट वगैरह भी गेन हुआ था, दोबारा स्पोर्ट्स में आना। क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फिट था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जैसे थोड़ा सा वेट वगैरह भी बढ़ाया था, तो उस समय थोड़ा मुश्किल था कि अब स्पोर्ट्स में कैसे जाना है, तो वो वेट को कम कैसे करना है। तो वो जो स्टार्टिंग था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसमें मैंने मतलब थोड़ा जल्दी ही वेट कम कर लिया। 2-2.5 महीने लगे थे मुझे। और उसके बाद क्रॉस कंट्री से लेके फिर मैं स्टीपल चेस में आया। तो मुझे लगता है कि जो मुझे स्पोर्ट्स में लाने का मतलब सबसे बड़ा योगदान है वो इंडियन आर्मी का है। उनकी वजह से मतलब मैं स्पोर्ट्स में आया। फिर 17 के बाद 18 में मैं नेशनल कैंप में रहा, तो वहाँ पे साई का और फेडरेशन का और टॉप्स की तरफ से सपोर्ट मिला, और फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, तो अच्छा करते गया। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि धीरे धीरे करके कि एक जैसे 2018 में 8:29 की भाग रहा था, और अभी जाके मतलब उस स्टैंडर्ड को, जैसे ट्रिपल चेस के स्टैंडर्ड को डाउन करते लेके जैसे 8-11 तक आए हैं। तो अभी मतलब और भी अच्छा करना है। तो मतलब ये जर्नी तो मतलब बहुत बड़ी है कि जैसे इसमें मेरे कोच थे, निकोलाई कोच थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उसके बाद मतलब अमरीश कोच थे मेरे, उनके पास भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा अभी स्पॉट सिमन से। तो मतलब बहुत सारे अप डाउन्स आए। ये जो 4-5 साल है इसमें बहुत जगह पे मैं बहुत ज़्यादा होप लेके गया, और कभी मतलब अच्छा हुआ रिजल्ट, कभी सोच के गए थे बहुत अच्छा होगा, अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए ये 4-5 सालों में। जी बिल्कुल। विजय, what have been the most significant obstacles and lessons you've encountered on your journey with Fast and Up? So the journey I started around 2016 when the Rio Olympics was happening. So we had identified, in fact I personally had identified that there were significant gaps on the nutrition side if India has to
perform at a very elite level. But we were at that point of time a very small brand. No one had heard about us. So our impact or our ability to influence was limited. I think the first and foremost that challenge that we faced was education, giving that right education to even elite athletes in the need of nutrition. So that has been a significant learning curve because we had to re-emphasize that nutrition is required, and that has been a journey. The second has been the ability to tell them that we have quality and safe supplements even coming from India, and that has been another big challenge because we don't have those examples in India. But fortunately, I think the journey is on, and I think we are in a better position right now than what we were in 2016. And I think this journey will only continue to get better and better as we progress. Absolutely. And you do support a lot of women athletes through sponsorships. Is that a focus for a brand? So for us, we go after athletes who haven't yet achieved the success, because a lot of brands do come in when finally athletes become successful. But when we see, we think that nutrition has to play a role right from the start of their training. And for us, we reach out to all athletes, but I think we are seeing an increasing share of women who we are supporting. It's just that they are more open to taking feedback, taking suggestions, and implementing them. And we find it very enriching to supporting them. And we have had a host of athletes who are women and who have been doing extremely well. एब्सोल्युटली। अविनाश, जो अब आपने एशियन गेम्स में डोमिनेट किया है, आपके ओलंपिक्स के सपने के बारे में बताइए। मतलब ये है कि ये मेडल तो मतलब एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि अभी जैसे कॉमनवेल्थ में भी मेडल था, स्टीपल चेस में और एशियन गेम्स में भी अच्छा ये किया है। तो अभी ये है कि पेरिस के लिए 10 महीने है, तो अभी जैसे दोनों गेम्स में मेडल है, तो ये कॉन्फिडेंस है कि जो पेरिस ओलंपिक्स है उसके लिए प्रिपेयर होना है। और मतलब ये है कि सिर्फ मेडल का होप लेके ही प्रिपेयर होना है, क्योंकि इस बार पिछली बार भी ओलंपिक्स में गया था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था। लेकिन इस ओलंपिक्स में मतलब ये होप लेके जा रहे हैं और इसी तैयारी के साथ मतलब जाऊंगा कि मेडल जीतना है और मेडल लेके आना है। जी, और फाइनल क्वेश्चन दोनों के लिए। इंडियन एथलेटिक्स ने पिछले कुछ सालों में एक अद्भुत ग्रोथ कर्व देखा है, और अब दोनों का यंग एथलीट्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी अब? पहले तो मतलब सबसे पहले तो हमने हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और एक चीज़ है जो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम जीत सकते हैं। जब तक हमारे मतलब दिमाग में एक लिमिट है कि हम इतना ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जैसे कि जब मैं स्टीपल चेस में आया था तो 2017-18 में आया था, तो सभी एथलीट्स मुझे पुराने एथलीट्स बोलते थे स्टीपल चेस के या कोई भी। अविनाश 829 का रिकॉर्ड 37 ईयर ओल्ड है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये था कि मैं बोल देता था कि मैं इसे तोड़ूंगा, और ये इतना आसान नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है, मैं कर जाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें सोच चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम अच्छा करेंगे। तो हमें जैसे हार्ड वर्क है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम भी ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं। और एक इंडिया का जो स्पोर्ट्स में मतलब न्यूट्रिशन का है, मतलब सबसे ज़्यादा ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें मतलब प्रॉपर कैसे सप्लीमेंट्स लेने हैं हमें। जैसे मैं तो फास्ट एनफ के सप्लीमेंट्स में 2019 से ले रहा हूँ। पहले मैं भी ये सोचता था कि इंटरनेशनल सप्लीमेंट्स में बहुत कुछ अलग होगा या इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। लेकिन जो मतलब 2020 का मैराथन भागा था, उससे पहले भी मैंने यही सप्लीमेंट यूज़ किए थे, और उसमें हाफ मैराथन थी, वो 1 घंटा 30 सेकेंड की भागा थी। तो तब से मुझे एक विश्वास हुआ कि फास्ट एनफ के सप्लीमेंट से ही मैं मतलब बहुत अच्छा कर सकता, और तब से मैं कंटिन्यू मतलब उस फास्ट एनफ के सप्लीमेंट्स ही यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि रिलोड है और प्री वर्कआउट है, एक्टिवेट, तो और BCAA, तो मतलब सभी सप्लीमेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा है। ये भी है। उसके साथ साथ जो एथलीट है हमारे अभी मतलब इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारे जो यंग एथलीट्स हैं उनकी शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं कि शॉर्टकट्स मतलब बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए। उसके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब जो
बैन चीजें वो भी खा रहे एथलीट। जैसे अभी पीछे कुछ कॉम्पिटिशन हो रहा था तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे स्टेडियम में दिल्ली वगैरह में। तो एथलीट्स को यही बोलूंगा कि टाइम लगेगा, सक्सेस मिलने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन हार्ड वर्क करो, एक अपनी सोच बदलो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो आप। मतलब हर जगह आपको आप जीतोगे नहीं, कभी कभी अप डाउन आएंगे, लेकिन अपना फोकस वैसे ही रखो और प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट लेके मतलब मेहनत करते रहो। अपने कोचेस से उन पे विश्वास करना चाहिए, वो क्या बता रहे हैं। हमने कभी कभी एथलीट्स को लगता है कि हम स्मार्ट है, हमें बहुत सारी चीजों का पता है, लेकिन मुझे लगता है कोचेस पे भी विश्वास रखना चाहिए और उनका भी सुनना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। तो अपनी तरफ से अपना 100% देना चाहिए ग्राउंड में, जिससे हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay, so thank you, Vijay. Thank you, Avinash, for joining us. That was Vijay Raghavan Venugopal and Avinash Sabre. For you all, stay tuned to Rev Sports. Thank you. Thank you. Thank you for joining, guys.